Hello students, how are you all? So today we are going to start a new topic of principles of management, that is fuels principles, and this is very important topic students. So now let's start this topic. Okay, so the principles of management by fuel. Fuel principles of management, just wait a minute. Okay, of management is reflected in his written work. Henry Fuel became very famous as the father of management studies and thoughts. ये कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है. हालांकि ये जो आपका टॉपिक है दिस कंटेन्स एक्चुअली 4 and 6 मार्क्स क्वेश्चन, और बेसिकली ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, लेकिन जो आप अभी प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उसके बेसिस पे यू हैव टू रीड दैट सिचुएशन एंड राइट द आंसर कि आपने ये किस प्रिंसिपल के बेसिस पे वो सिचुएशन बनी है, कि वो डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आगे हम जो पढ़ेंगे वो अथवा डिसेंट्रलाइजेशन है, क्या है. तो उसके बेसिस पे ये आपसे प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स में हर बार क्वेश्चन सीबीएसई और आईसीएसई उसमें पूछा ज़रूर जाता है. ओके, तो हेनरी फ्यूल बिकम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज contribution and management studies and thoughts because of his following contribution and his own experience in the field. Fuel set forth 14 principles of management. Okay, so how many principles are there? There is 14 principles. The first is division of work. According to this principle, whole work must be divided into small tasks of units. Division of work means specialization. ओके, तो डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो उसमें क्या किया जाता है कि देखो लोगों को क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में उनके काम में डिवाइड कर दिया जाता है. ओके, एंड डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स स्पेशलाइजेशन. दैट मीन्स यू हैव स्पेशलाइज इन सम पर्टिकुलर वर्क, इसलिए आपको क्या किया जाता है, आपको हर एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है. And that each job of work should be assigned to the specialist of that job. And the fuel suggested that division of work not only at factory but at the management level also. Okay, so this is the division of work is not important in a factory or in a organization. It is important in all the levels, चाहे वो top level हो, middle level हो या lower level हो. Next is authority and responsibility. Authority means power of take decisions. कहते हैं ना कि आपको किसी चीज़ की authority मिली है. Okay, you have a power. Responsibility means obligation to complete the job assigned on time. Okay, and what is your responsibility? कि अगर आपको कोई वर्क दिया गया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम. Okay, so the authority and responsibility are go together. According to this principle, there must be a balance on priority between the authority and responsibility. So it is very important that authority and responsibility are always go together, because without authority and responsibility they cannot do any work. Okay, now come to the next. Okay, so excess of authority brings negative results, and excess of responsibility will not allow the worker to complete his job on time. Okay, now come to the next, that is discipline. According to Fuel, discipline is in essence obedience, application, energy, behavior, and outward marks of respect observed in accordance with the standing agreements between the firms and its employees. Discipline refers to following rules and regulations of employment agreement, clarity of agreement between subordinates and superior, and Fuel insists that discipline is required at superior as well as subordinate level. Okay, so discipline means ki that you must have that power, that consistency in your work, कि आपके पास क्या हो कि दैट आपको एक रूल्स एक रेगुलेशन दिए जाते हैं एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में, दैट यू आर गुड एट सुपीरियर एट ऑल लेवल्स. ओके, कि आपकी मीटिंग कमिटमेंट्स जो होती हैं हर लेवल में, तो उसमें आपकी एक डिसिप्लिन होनी चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो क्या है, डिसिप्लिन क्या बताता है कि दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एक्चुअली एट सुपीरियर एज वेल एट द सबॉर्डिनेट लेवल, इसलिए वो हर एक लेवल में होना चाहिए. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम कह सकते हैं कि दैट एम्प्लॉय इज़ ऑनर विद देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है, दैट ही विल वर्क, दैट अ पर्सन वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द डिसिप्लिन, कि आपको क्या एक अथॉरिटी दी गई है. ओके, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड.
According to this principle, an employee should receive orders from one boss only because if so many employees give their views to the worker, then he get confused and create conflicts in the organization. Okay, unity of command means कि आपको क्या किया गया है, every employee has a one superior boss. ओके अगर वो एक बॉस की बात सुनेगा तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंसी से वर्क कर सकता है. लेकिन अगर वो सबकी, अगर उसको हर कोई कमांड करेगा, हर कोई कुछ अपना अपना बताएगा, तो वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन हिज वर्क. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो again that one unit means one plan. That means the principal unity direction means the efforts of all the members of the organization should be directed towards goal. It is also called as unity of action. ओके यानी कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान, यानी कि एक वर्क होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या होना चाहिए, एक काम होना चाहिए. ओके जैसे फॉर एग्जांपल दैट इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हम की बात करें तो दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, एंड वन यूनिट मीन्स वन प्लान इज क्या हो गया कि जो आपके एफर्ट्स है, द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑन द एम्प्लॉयज दैट शुड बी गोज इन अ मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन. आपका क्या है, आपको अगर कोई एक चीज़ का प्लान बताया जाएगा, आपको कोई एक एम ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, तो आप एक ही की तरफ वो काम करेंगे. ऐसा तो है नहीं कि आप ये दो तीन प्लान्स को लेके चलेंगे कि हम ये भी काम कर लेंगे, ये भी कर लें, नहीं. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि आपको वन यूनिट वन प्लान, यू हैव टू मेक अ वन प्लान एंड फोकस एंड गो टूवर्ड्स दिस प्लान ओनली. नेक्स्ट इज subordination of individual interest to general interest. Okay, so according to the principle, the interest of an individual and the management is same. Okay, because all the employees are working with the same objective of an organization. ठीक है, हमारे कंपनी में जो भी अगर आपको कोई प्लान दिया जाता है उसका मतलब क्या है कि आप सब लोग क्या है, एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए ज़रूर है, लेकिन काम क्या है, प्रोडक्ट तो एक ही बना रहे हैं. अगर मार्केटिंग का है या फाइनेंस का है या एचआर का है, आपके पास अलग अलग वर्क हैं, आप स्पेशलाइज्ड हैं अपने अपने वर्क में, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, लेकिन एक काम तो एक ही प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं. ओके, मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स एंड नॉट हिज पर्सनल इंटरेस्ट. ओके, यानी कि मैनेजर का क्या ड्यूटी होती है कि वो अपने डिसीजंस जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे. Next is remuneration of employees. That according to this principle, employees in the organization must be paid fairly and reasonable so that employees are satisfied for their work. यानी कि this is very important that every employee get equal wages and salary. Okay, उनको fairly paid मिलना चाहिए, जितना उनका according to work है उसके according उनको क्या मिलनी चाहिए, उनको उनकी wages मिलनी चाहिए. Okay, एंड सो दैट एम्प्लॉय आर साटिस्फाइड देयर वर्क. अगर उनको अच्छे से पेड मिलेगा तो वो भी क्या होंगे, अपने काम से सेटिस्फाई होंगे. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू फ्यू, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट वन प्लेस और लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लेवल ऑन द इन द ऑर्गेनाइजेशन, फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल. यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास है, वो हमारे टॉप लेवल के पास है. ओके, so the centralization means the concentration of authority at one place or level in the organization, and decentralization refers to distribution of power at every level of management. Okay, यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन में आपको जो अथॉरिटी दी गई है वो क्या है, वो कुछ लोगों के पास है टॉप लेवल में. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी पावर को क्या करते हैं, हर एक लेवल में उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, जैसे ये हम मान लेते हैं कि जैसे पंचायत होती है. ठीक है, पंचायत जो होती है हमारी कंट्री में, दे हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड्स. जो भी हमारे फंड्स होते हैं ग्रांटेड होते हैं, जो गवर्नमेंट उनको अपने विलेजेस के लिए ग्रांट करती है. ठीक है, तो पंचायत के पास क्या होता है, उनके पास अपनी एक अथॉरिटी होती है कि पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं उनको कितना खर्च करना है. तो ये क्या हो गया, ये नेशनल लेवल का एक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि हम नेशनल लेवल पे हमने जो पंचायत है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है. ठीक है, तो उसमें जो पंचायत होता है उसमें नेशनल लेवल में क्या होगी, पंचायत जो होगी वो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन हो गई. यानी कि नेशनल है ने अपने इंडिया में अपने उस पार्ट को क्या किया, डिवाइड कर दिया गया कि पंचायत को अपनी उसको एक अथॉरिटी दे दी कि क्या किया जाएगा, वो अपने हिसाब से जो है डिसाइड कर सकता है कि वो अपने विलेजेस के लिए कितने फंड को रेज करना चाहता है और किस तरीके से. Okay, next is principle of scalar chain. Principle of scalar chain suggests that communication from top to bottom should follow the line of command. Principle of scalar chain requires that all
communication should follow through the chain of hierarchy. Yes, that means कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है. कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप लेवल है डिसाइडेड some meetings, okay, then it is followed by the middle level and then lower level. तो ये क्या हो गया कि हमारी लाइन ऑफ कमांड हो गई कि कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है या कोई भी चीज़ का आपको जो काम है वो कैसा है, वो एक हायरकी लेवल से आना चाहिए, ठीक है. And that requires all communication should follow through the chain of hierarchy. Okay, now come to the next. Principle of order. The principle of order does not mean command. ठीक है, ओके, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, कमांड देने का नहीं है. इट रिफर्स टू अरेंजमेंट्स ऑफ मैन एंड मटीरियल. द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज कंसर्न विद टू एस्पेक्ट्स. Okay, so the first is material order. It means the arrangements of things, and social order, it means the arrangement of people. Okay, तो principle of order का actually मतलब क्या है, कमांड बिल्कुल भी नहीं है. ये क्या बताता है, it refers actually that कि जो हमारे arrangement of man and material, यानी कि जो भी हमारा man and material है, that it's to be a fixed place for everything and everyone in the organization. Okay, तो जितनी भी चाहिए, क्योंकि because fuel actually insists that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization and fixed place or for every employee of the organization. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फॉर मैन एंड मटेरियल के लिए हर एक चीज़ को क्या है उन्होंने अच्छे से उसको अरेंजमेंट किया है कि नहीं. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी मीन्स दैट इक्वालिटी. ओके, so principle of equity is according to this principle implies that the manager should be fair and impartial while dealing with their subordinates. The principle of equity suggests that similar treatment is assured to people in similar position. Okay, so that means that this principle implies that कि manager कैसा होना चाहिए, that it should be a fair, ओके, इम्पार्शियल, कि अगर वो अपने जितने भी इसके सबॉर्डिनेट्स है वो वर्किंग अंडर है, वो किसी को भी मैन विमेन या कोई भी हो जो है इम्पार्शियल नहीं कर सकता. The principle of equity suggests that similar treatment is assured to people in their similar position. Okay. Stability of tenure of personnel. According to this principle, employers should not be moved from their position frequently. The period of service in a position should be fixed, because if you moved frequently, then it increases the cost of the organization and delay in production. The management must provide the feeling of job security among the employees. ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. अच्छा स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को बाकी बच्चों में भी इसको आप शेयर कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जो बच्चे स्टूडेंट्स घर पे हैं वो उस चीज़ से उसको पढ़ सकते हैं और उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा. तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा. ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या हो गया कि जो एम्प्लॉयर है वो अगर हर कंपनी में या अपने डिपार्टमेंट में मूव करते रहेगा तो क्या होगा, एक तो उसकी कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं होगी और उसका जो वर्क है वो भी क्या होगा, वो भी सिस्टमैटिकली नहीं होगा. तो द पीरियड ऑफ सर्विस इन अ पोजीशन शुड बी फिक्स्ड ड्यूरिंग इफ यू मूव्ड फ्रिक्वेंटली, देन इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिले इन प्रोडक्शन. तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने जो उसका काम है, जो उसका प्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिले होता जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन इज़, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने कंपनी में एम्प्लॉयज़ को जल्दी जल्दी निकालेंगे या स्विच करेंगे, किसी को आज आपने किसी को रखा फिर उसको निकाल के आपने किसी और को रख लिया, तो क्या होगा, आपके प्रोडक्शन में उस चीज़ का वर्क का डिले होता जाएगा. सो द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़. इसलिए मैनेजमेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज सॉरी हाँ ओके, नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. Initiative means to take the first step with self-motivation. According to this principle, initiative means to create eagerness, initiate action without being asked to do so. Fuel suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. Initiative का मतलब क्या हो गया कि आप जब किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं. ओके, कि आपको लगता है कि आपको ये काम खुद से करना चाहिए, आप कोई प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप खुद से आप अपनी कंपनी में इनिशिएट करेंगे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का प्लान, उसको बनाने का प्लान, तो वो क्या होगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा.
Okay, and manager always welcome the suggestion and ideas of employees before framing the plan. तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इनिशिएटिव हो जाता है when you start doing for your business or the organization. Okay. Next is spirit the crops. Manager must encourage and promote team spirit, unity and harmony. Okay, किसी भी कंपनी में क्या ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपके बीच में क्या होना चाहिए, एक स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए. दिस विल ब्रिंग कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे से क्या होगा, जब अच्छी सी अच्छा स्पिरिट होगा, एक यूनिटी होगी, दैट विल ब्रिंग अ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. इट इंक्रीजेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग वर्कर्स. Okay students, so this is very important actually and it comes 6 marks. तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा. और जो मैंने आपको बताया है कि ये 1 मार्क्स में भी आते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस जो है वो कैसे आते हैं आपके में कि जो सिचुएशन बेस्ड जो होते हैं वैसे आते हैं. तो हम उस क्वेश्चंस को भी एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक ओके टुमारो. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे क्लास. थैंक यू सो मच.